خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی انجیل ہم مقدس متی کے 10ویں باب میں سے سنتے ہیں، اور مقدس متی کے 10ویں باب میں ہم وہ تمام ہدایات پڑھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان کی تبلیغی خدمت اور رسالت کے لیے دیں۔ انجیل میں ہم اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع شاگردوں کو کہتا ہے، ان سے مت ڈرو، مت ڈرو۔ آج کے اقتباس میں یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ کن سے نہ ڈرو؟ اگر ہم متی کی انجیل کے 10ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 3 اہم کام دیے ہیں، اور ہم 10ویں باب کے شروع میں ہی ہم وہ 3 کام پڑھتے ہیں۔ یسوع نے شاگردوں کو بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ وہ ان کو نکالے۔ دوسرا، ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کریں۔ یہ اہم کام تھے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیے، اور ان کے ساتھ جو سب سے اہم کام تھا وہ منادی کا کام تھا، تبلیغ کا کام تھا۔ یسوع انہیں 3 اہم کام، خدا کی بادشاہی کا پرچار، بیماروں کو شفا دینا، بدروحوں کو نکالنا، 3 اہم کام۔ اور یسوع انہیں کہتا ہے، ڈرو مت۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کون ڈرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کون ڈرتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ ڈرتا وہ ہے جو صاف دل نہیں، جو مغرور ہے، جو خود غرض ہے، جو بدی کرتا ہے۔ اور یسوع انہیں کہتا ہے مت ڈرو۔ کس سے ڈرنا ہے؟ خود غرضی، مغروری، گناہ سے، خدا سے بے وفائی کرنے سے ڈرو۔ اور یہ ڈر بیرونی ڈر نہیں، لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں، بلکہ یہ اندرونی ڈر کی بات یسوع کر رہا ہے۔ شاگردوں کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، شاگردوں کی وہ رہنمائی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں
और वो उन्हें बताता है कि खुदा से कोई बात छुपी नहीं। खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ जानता है, वो दिलों और गुर्दों के राज भी जानता है। इसलिए वो कहता है कि कोई चीज़ छुपी नहीं जो खोली न जाए, और ना छुपी है जो जानी न जाए। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो। अंधेरे में, यीशु को अंधेरे में उनसे बात करने की क्या ज़रूरत थी? हम मत्ती की इंजील उसके 6वें बाब को ज़हन में लाएं कि यीशु अपने शागिर्दों को क्या कहता है। जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। पोशीदगी में, अंधेरे में कहने का मतलब है पोशीदगी में खुदा की आवाज को सुनना, अकेले खुदा की आवाज को सुनना। और फिर सिर्फ यही नहीं कि खुदा की आवाज को सुनना, बल्कि उसका प्रचार करना। अगर हम यीशु को जानते ही नहीं, अगर हम उसे सुनते ही नहीं, तो फिर हम किस तरह उसका प्रचार कर सकते हैं? अगर हम यीशु की बातों को सुनते ही नहीं, तो फिर किस तरह हम उसका ऐलान कर सकते हैं? यीशु अपने शागिर्दों को कहता है, उजाले में कहो, रोशनी में कहो, कोठों पर उसकी मनादी करो। और ये वो काम उन्हें देता है कि वो मनादी करें, खुदा की बादशाही की मनादी करें, खुदा की बादशाही का प्रचार करें। और यहाँ पर वो कहता है, उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी का मुहाफिज कौन है? हमें जिंदगी देता कौन है? खुदा हमें जिंदगी देता है, वो हमारा खालिक और मालिक है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस के मुताबिक तमाम चीज़ें खुदा से निकलती हैं और खुदा की तरफ लौट जाती हैं। हमें जिंदगी देने वाला खुदा है और हमारी जिंदगी जो है ये खुदा की तरफ वापस लौट जाती है। हमें नहीं डरना चाहिए। यीशु शागिर्दों को उनकी अहमियत बताता है। वो उन्हें कहता है, क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। ये चिड़ियों का क्या जिक्र? यीशु के जमाने में काहिन हर चीज को बरकत देते थे, लेकिन चिड़ियों को बरकत नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि किसान जो हैं वो चिड़ियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनकी फसल खराब करते थे और चिड़ियों की कोई अहमियत नहीं थी। हर जानवर की, हर परिंदे की एक कीमत थी, एक कदर थी, लेकिन चिड़ियों की कोई कदर नहीं। लेकिन यीशु ने कहता है, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। हमारी कदर क्या है? हम खुदा की शक्ल और सूरत पर पैदा किए गए हैं। यीशु ने हमारी खातिर अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, वो हमें बचाता है। हमारी कदर ये है कि यीशु हमें प्यार करता है, खुदा हमें प्यार करता है, इसीलिए वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। यीशु ये बातें करते हुए पहले उन्हें बताता है कि वो तबलीग मनादी करें, और फिर तबलीग और मनादी वो कर सकता है जो यीशु पर ईमान रखता है, जो खुदा पर ईमान रखता है। इसलिए यीशु कहता है, जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। ये हमारे ईमान की बात है। रबी योयाकीम की मिसाल देना चाहता हूँ। मरने से पहले जब वो बहुत बीमार था, उसके चेले उसके पास गए और वो रो
रहा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मैं इंसानों से खौफजदा नहीं, मैं मौत से खौफजदा नहीं। इंसान मुझे सजा नहीं दे सकते, मैं खुदा से डरता हूँ, मैं उससे रहम मांगता हूँ, उसने मुझे जिंदगी दी है। मैं यीशु का इकरार करता हूँ। हमें भी यीशु का इकरार करना है, हमें भी सच्चाई का प्रचार करना है, हमें खुदगर्जी से दूर और मगरूरी से बचना है। यीशु हमें प्यार करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम जिंदगी के किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हों, हम काहिन हैं, हम ख़ानदानी ज़िंदगी में हैं, हम वालिदैन हैं, हम टीचर हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा करें और मत डरें। हम उस वक्त डरेंगे जब हम खुदगर्ज़ हैं, जब हम मगरूर हैं। इसलिए यीशु कहता है, जो आखिर तक वफादार रहेगा वो ही निजात पाएगा। खुदा यीशु मसीह की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।